There are days when the battle looks bigger than yourself. There are days when the opponent seems invincible. There are days when luck doesn't favor you. Nothing seems to go your way. That is the day a champion is born. Hunters Cricket. Think of health. Think of us. Think of weight management. Think of us. Think of lifestyle modification. Think of us. We are Anchal's Nutri-Treasure. We have a history of changing life to healthy life over the period of 2 years now. Healthy life with healthy diet is the name of the game we all are in for. If yes, we are the one, Anchal's Nutri-Treasure. Personalized services from qualified dietitian Anchal Garg Sharma around metabolic disorders like diabetes mellitus, cholesterol, hypertension, thyroid, and PCOS management, etc. Interested healthy life, healthy diet believers can reach us at our Facebook and Insta pages at anchal.nutritreasure, email anchal.nutritreasure@gmail.com, contact number 886-042-8386. What are the ingredients of a great team? Chomping on foods together. Sticking like glue together. Having fun together. Going places together. Doing stuff differently together. Celebrating together. So, what are the ingredients of a great team? Being together. Hunters Cricket. Good evening everyone and welcome you all to Off the Field with Rahul. This is our 7th episode and probably the last one as well for season 1. So before I invite the guest of the night, let me give a quick introduction and a surprise for him. Hey guys, I hope everyone is good. This is Sunny from Hunters Cricket Club. This is going to be our last episode and it's going to be super duper exciting. It's going to be full of Punjabi stays and the jokes. He's a gun guy. Whenever you throw a ball to him, he's gonna give you a wicket or a good over, which is really good for a side. People like him having in a squad is really good feeling, and to share a match with him, it's really nice. I really personally like him, and yeah, after matches shows are really fantastic because this guy cracks up the jokes. So yes, excited. Stay tuned, guys, and hope you are understanding who's coming next. Cheers. Hi guys, I am from Dharamjit Singh from Hunters family. जो गेस्ट इस बार आ रहा है
उसके बारे में क्या बोलूँ। वो हंसमुख बंदा, सबको हंसाने वाला, और अपनी ऑफ स्पिन से वो बंदों की छक्के छुड़ा देता है अपनी ऑफ स्पिन से, दोस्तों अपनी ऑफ स्पिन से। और मेरा वो बहुत ख़ास है। और वन मोर थिंग, हंटर्स ब्लैक का वो वाइस कैप्टन है, वाइस कैप्टन। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू गाइस। Hey guys, अंशुल here. आज हम उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं who is brilliant at what he does. It's an amazing experience to see his flight coming from behind the stumps. One of the most entertaining person of the club, Blacks Kishan, and definitely the king of sarcasm of the club. Thanks. All the best for the show. Hello guys, I am Dheeraj Kumar, and today I am talking about a person who is one of the most enthusiastic player of Hunter's family. He is a really treat to play with. He is one of the finest captain, one of the great bowler, and a really jolly personality as well. He knows how to increase the motivation level and decrease the game pressure of his team, even in a very tough situation. Thank you so much, and all the best. Hello everyone, this is Heather, and today the player which we are talking about is very special. He is, a laughter therapy for all Hunter players, and he is not only good off-break bowler, he is a nice human being as well. He has a lot of quality, man. He has a lot of quality, and so let's see what other talent he possesses. So stay tuned, guys. Thank you. Okay, that was quite a surprise. So I know he's quite a celebrity, and most of you have guessed his name. But let me do my job and give a quick introduction about him. He is the famous player of Hunters. He is the vice captain of Hunters Black and probably the future captain of Hunters Black as well. He is an off spinner. And ladies and gentlemen, he is our very own Chulbul Pandey. If you have guessed it correctly, ladies and gentlemen, please put your hands together for one and only Rishi Bhalla. Welcome to the show, Rishi. हाय राहुल। Hi. हाय कैसा लग रहा है ब्रो? बस बढ़िया लग रहा है। आप बताओ कि मतलब इतना आपका शो हिट हो गया है और उसका लास्ट एपिसोड है, तो मैं आया हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है? भाई मैं पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं नर्वस हूँ। नहीं You are so famous, you are so famous. Actually हुआ क्या था? I'll tell you. फेमस नहीं। हाँ। Actually मैं बताता हूँ हुआ क्या. So this is, as you know, this is the last episode of the season 1. तो मैंने बोला था मनु सर लास्ट एपिसोड ना कुछ ऐसा करना चाहता हूँ मैं किसी ऐसे बंदे के साथ, तो ना हम वो कहते हैं ना एंड एट द हाई नोट, बिल्कुल ऐसे बंदे के साथ करना चाहिए, हाई ऑन एनर्जी, जिसके साथ मजा भी आए बात करने में, हाँ फन हो, जिससे लोगों को भी सुनने में मजा आए। तो मैंने कहा ठीक है ऋषि के साथ करते हैं फिर लास्ट राउंड। थैंक यू। ओके सो ऋषि, यू नो द फॉर्मेट क्या कि इस बार हमने क्या किया, एक हमने सेगमेंट हटा ही दिया। सो इस बार जस्ट बिकॉज इट्स अ स्पेशल एपिसोड और द लास्ट वन, सो वी हैव केप्ट इट वेरी सिंपल। 3 सेक्शंस रखे हैं। पहला होगा हमारा, हाँ क्विज वाला हटा दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। लुकिंग एट द परफॉर्मेंस जो पिछले लोगों ने दिया ना, मुझे लगा वो हटा ही देना चाहिए। हाँ, मेरी कंपार्टमेंट आती। मेरा कुछ नहीं आना था। सो हम स्टार्ट करेंगे पिच रिपोर्ट से, फिर विल मूव अहेड विद रिवर्स स्विंग एंड एंड करेंगे फिर हम वो डग आउट से, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट राउंड। ओके हम ना अपने बात करेंगे कि प्री हंटर्स लाइफ कैसी थी, फैमिली के बारे में बात करेंगे, हंटर कैसे ज्वाइन किया। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू हैव इन फैमिली और हु इज ऋषि भल्ला? भाई ऋषि भल्ला के बारे में कुछ बताओ जो कि लोग नहीं जानते। ऋषि भल्ला ओपन बुक है, सब जानते हैं ऋषि भल्ला को। अरे सब कुछ ऐसा कुछ हिडन है नहीं, कुछ हिडन नहीं है ऐसा। कुछ भी हिडन नहीं है। कोई ऐसे पेजेस नहीं है जो चिपके, कोई भी ऐसे पेज नहीं है जो चिपके हुए हो, जो कि मिस आउट हो गए हो पलटते, या फिर ये बुक बहुत नहीं है, ये ना इस बुक में पेजेस बहुत ज्यादा हैं, प्रॉब्ली हर किसी ने वो बुक पढ़ी नहीं है। जिसने भी ये पेज पलटे थूक लगा के पलटे हैं, कोई पेज रह नहीं सकता। पेज रह नहीं सकता कोई। ओके ऐसा कोई पेज जो लोग, मतलब मुझे लगता है कि ना लोग ये एस्पेक्ट ऋषि भल्ला के बारे में नहीं जानते। ऐसा मेरे को कोई वो नहीं है कि ये मेरे बारे में इस तरह से नहीं जानती। ऐसा तेरे को लगता हो कि यार शायद प्रॉब्ली ना मेरे को लोग मतलब इस तरह से जानते हैं दैट आई एम वेरी जॉली इन नेचर, ऑलवेज फन लविंग, लेकिन ऐसा है कि सीरियस साइड भी है मेरी भाई, और शायद तुम लोग नहीं जानते हो कि हाँ ऋषि कभी भल्ला जो है हमारा कभी सीरियस होता है लाइफ में या नहीं होता।
बस यही सीरियसनेस है मेरी, मैं इस चीज में सीरियस रहता हूँ, बस इतना ही हो सकता है बस। बस ये इतनी देर इससे के ज्यादा लिए। नहीं हो सकता। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में पापा हैं जिसकी वजह से मैश कर रहे हैं, मम्मी है जो ऐश संभाल रही है, ऐश संभाल रही हैं। हाँ दादी बस। हैं, नहीं दादी हैं जो जिनके आशीर्वाद से और ऐश चल रही है। मम्मी पापा ऐश करा रहे हैं जिसकी हाँ वजह से। हाँ बस, और फिर छोटा भाई है जो हमारी वजह से ऐश कर रहा है, अरे, और क्या एक बीवी है जो हमारी ऐश रोकने में लगी है। भाई कोई तो होना चाहिए, चालान भी काटे यार। बस चलान किसी कर को रहा है। किसी को तो टोल देना पड़ेगा, अदरवाइज भाई अगर सब ऐसे ही करते रहेंगे, हाई स्पीड पे गाड़ी चलती रहेगी तो फिर वो ब्रेक लगेगी नहीं गाड़ी पे। पर वो चलान भी कोर्ट के होते हैं ना, पेशी होती है, ऑनलाइन नहीं भर सकते। राइट। तो ऋषि यार एक बात बता भाई, हाँ जी, हंटर्स का पता किसने बताया? हंटर्स कैसे ज्वाइन किया? देखो मैंने हंटर्स को नहीं ढूंढा, हंटर्स ने मुझे ढूंढा। अच्छा। हमारा मैच था टर्फ ग्रीन में हंटर्स के साथ, तब नई अच्छा, टीम अच्छा, बनी अच्छा। थी ये, ओके, तब ओके, इनकी ओके। ये येलो ब्लैक इतना नहीं था, सिर्फ एक ही टीम थी इनकी, सेकंड अच्छा, अच्छा। बना रहे थे ये। तो फिर मैंने मतलब हंटर्स को कहना नहीं चाहिए, लेकिन पेला हमने उनको इनको इस मैच में। तो बस उन्होंने कहा यार ये कौन सा बंदा जो हमें अच्छा। पेल रहा है, इसको तेरी। पकड़ो। हाँ अच्छा, तो फिर उन्होंने अप्रोच किया कि यार हम एक और टीम बना रहे हैं, हमें अच्छे प्लेयर्स चाहिए हैं, तो प्लीज आओ। फिर मैंने कहा अरे नहीं मेरा टाइम नहीं है इतना। ओ तो तेरी। मतलब इतना अच्छा, रिजेक्ट कर दिया था? अरे रिजेक्ट कर दिया था पहले? हाँ मैंने कहा यार नहीं अभी तो हमारी टीम मैचेस चल रहे हैं। फिर वो पड़ी गए पीछे कि नहीं ओ आओ, तेरी, अच्छा, नहीं आओ, अच्छा। नहीं आओ। हाँ तो मनु सर तो कहते हैं मैं घर आ जाऊंगा, तू नहीं आएगा तो सीरियसली? फिर मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, कोई बात नहीं मैं आ जाता हूँ। वहाँ पे कौन सा मैच है क्या है? So- अच्छा वहाँ गया तो कहते तुम्हारा ट्रायल लेंगे। मैंने कहा यार 1 महीने से आप बुला रहे हो, अब अभी ट्रायल लोगे? अभी कह रहे नहीं वो हमारा फॉर्मेट है, कहना होता है ये ऐसे है। अच्छा, उसमें भी सिफारिश चल रही थी बिकॉज मनु शर्मा को हायर करने करना था प्रॉब्ली। हाँ नहीं करना था उन्होंने वैसे यार, बाकी जगह दिखाना होता ना कि नहीं मतलब मेरी है ऐसे नहीं है, तो उनको जरा सा वो थोड़ा अच्छा, सा अलग अच्छा, टाइप से अच्छा। सोचते हैं ना। Okay, तो okay. मेरे सामने यार, बनी फिर ब्लैक रेड ब्लू Okay. सारी तो सामने। तो मेरे को यार वो जो मतलब वो पीछा करने घर तक आ गया, मेरे को सनी देओल याद आ गया। वो एक मूवी थी जीत मूवी थी ना, उसके अंदर सनी देओल बाल लंबे लंबे वो हाथ खड़े कर देता है, रोक बस देता है, नीचे वैसे- चक्कर काट, वैसे- बिल्कुल वैसे ही घर के चक्कर वक्कर काट रहे हैं। बिल्कुल वैसे नहीं कहता बस मैं आ रहा हूँ, अच्छा। घर के चक्कर काटूंगा। हाँ मैंने कहा नहीं सर ऐसे क्या तो फिर हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? मतलब कि यार नहीं चलो तरस खा के ज्वाइन किया हंटर्स, या यू सीरियसली फेल्ट कि नहीं यार अब मुझे हंटर्स में ट्राई करना चाहिए? नहीं मैंने कहा इतना बुला रहे हैं जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है कैसे तरस- टीम है, क्या है। तरस खा के, या फिर मतलब जस्ट बिकॉज मनु शर्मा ने मतलब इतने चक्कर काटे? ये होता है ना कि लड़की भी एक बार चांस दे देती है कि लड़का इतनी मेहनत कर रहा है यार, इतने चक्कर काट रहे, चल एक बार तो बात कर ही ऐसे ही बाकी मैं गया था फॉर माय लव ऑफ क्रिकेट। हाँ वो तो है, वो हाँ, तो सभी का क्रिकेट है। है, बस क्रिकेट है तो बस मैंने कहा नहीं एक बार। उसके बाद जब एक दिन गया तो बस उसके बाद से फिर वो होता है ना अंबुजा सी में हाँ, फिर जुड़ तो- गया वो वो जुड़ गया। we all can see. So do you regret your decision joining Hunters? पहले क्लब से बेटर है? नो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बेस्ट डिसीजन होगा Best decision. आफ्टर वो जो हम अपना एकेडमी और क्लब स्कूल क्रिकेट के बाद, तो ये उसके बाद एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला खेलने के लिए। और उसके लिए कितने साल हो गए हंटर्स के साथ? हंटर्स में जुलाई और अगस्त में 2 साल हो जाएंगे। नाइस यार, व्हाट अ जर्नी मैन। और देख उसी बीच में यू हैव बिकम वाइस कैप्टन एज वेल। सो लगता है जल्दी गुलाम को डिस्प्लेस कर देगा और यू विल बिकम कैप्टन फॉर हंटर्स ब्लैक? हाँ एनी डे। ऐसा मतलब तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। तख्ता पलट कभी भी हो। गुलाम सर अभी इतने महीनों बाद आए हैं, है ना, तो अब हमने उतनी देर में पकड़ लिया है। गुलाम सर थोड़ा सा ध्यान रखना, आना है गुलाम, आपने। हाँ गुलाम ध्यान रख भाई, मतलब देयर आर पीपल आइंग योर पोजीशन मैन, सो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सो व्हाट इंस्पायर्स यू इन लाइफ? इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन है एक तो क्रिकेट है, क्रिकेट से बहुत इंस्पिरेशन, और सेकंड आजकल इंस्पिरेशन हो गई है कि मतलब ये द राहुल शो, मतलब ये मेरी इंस्पिरेशन है कि मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि ये मुझे बुलाए। अच्छा, इतने सारे ये भाई। players में कि मतलब मैं जाऊं यहाँ। नहीं, इट्स माय ऑनर ब्रो, इट्स माय ऑनर नहीं यू हैव यू ऑन द शो। तो देखो ऋषि वाला फैन क्लब नहीं है, और हैशटैग राहुल फैन क्लब है।
नहीं, सब मनगढ़ंत है भाई। नहीं अच्छा ऋषि, एक बात बता भाई, मतलब हम सब जानते हैं यार, यू आर ऑलवेज, मतलब जहाँ भी तू है वहाँ पे फन तो होगा ही होगा, फिर भी एक ऐसा कोई इंसिडेंट जो कि फनीएस्ट ऑफ योर लाइफ जो कि शेयर करना चाहता हूँ? फनीएस्ट मतलब फनीएस्ट इंसिडेंट बिल्कुल, जिसमें मतलब जो तू बोले कि यार ये मेरे टॉप 3 में आता है मेरी लाइफ के फनीएस्ट इंसिडेंट, हंटर्स के साथ भी हो सकता है, ऑफ द फील्ड विद हंटर्स। मैं बताता हूँ एक क्रेजीएस्ट चीज जो मतलब थोड़ा रिसेंटली हुई। अच्छा, शादी के बाद। अच्छा 2018 में हुई मेरी शादी, हाँ, फेब में। तो अच्छा। कड़वा चौथ आता है, मेरे को पता नहीं था, दशहरे और दिवाली के बीच में। ये कड़वा चौथ नहीं होता, ये करवा चौथ होता है। करवा चौथ जो भी है, मतलब जो होता है ये, इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो अब मुझे पता नहीं था, तो मैं ऐसे घूमते फिरता, तो फ्रेंड्स वगैरह ने कहा अरे शादी होगी तो मतलब साथ घूमने फिरना नहीं है, ये नहीं करना। तो हमने प्लान बना लिया थाईलैंड का। ओह, तेरी शादी के बाद? शादी के बाद प्लान बना लिया फ्रेंड्स ने थाईलैंड का, कि फुकेट जाएंगे, फिर बैंकॉक जाएंगे, 5-6 दिन के बाद आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से फ्लाइट लेके गया, तो मुझे पता चला कि 2 दिन बाद करवा चौथ है वहां पे। तो मेरे को वहां से तो अगर देखो, यहाँ तो आपको सारी जिंदगी की सजा चाहिए, तो आप अपना वहां ऐश कर लो 6 दिन। तो मैं वहां से कड़वा चौथ वाले दिन सुबह फ्लाइट लेके आया, कड़वा चौथ किया और रात को फिर वापस गया। ओह भाई, इसे बोलते हैं डेडिकेशन, ये बोलते हैं बैलेंसिंग एक्ट भाई साहब, है ना। तो मौत को छू के टक से वापस आ गया, और मतलब ये मेरे साथ हुआ ऐसा। भाई साहब, मतलब 24 आवर्स में मेरी थाईलैंड की एक एग्जिट एक एंट्री और इंडिया की एक एग्जिट एक एंट्री। और उसमें जब मैं वापस जा रहा था तो इमिग्रेशन वाला मजे ले रहा मेरे से। अच्छा, कि आप सुबह तो आए हो, आप दोबारा क्यों जा रहे हो? क्यों आए? मैंने कहा कड़वा चौथ था इसलिए आया हूँ, मेरा ट्रिप अभी कंटिन्यू करना है। तो कह रहा है अभी तो आप सोए भी नहीं हो। के लिए आया। हाँ, मैं भी सोया। मैं जब वापस जा रहा था तो मैंने तब सांस ली, तब मैंने पूरी सांस हो गया, सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया। जाने दिया, इजीली जाने दिया कि करवा चौथ है, कोई प्रेशर नहीं था घर से कि रुक, शर्म नहीं आ रही तुझे करवा चौथ की रात तो बिता के जाकर? पे यार ऐसे मैं ये वो देखेगी, अभी मेरी इंटरव्यू देखेगी तो वो कहेगी, पकड़ लेगी मेरे को। जो मेरी सच भी नहीं बोल सकता, जो मेरी ट्रिक थी। अच्छा, ठीक है, लेट्स नॉट रिवील दैट बाय ब्रो कोड। जिसको भी चाहिए हो वो पर्सनली वो कॉल कर लेगा, पर्सनली आके मिले। तेरी कोई एक ऐसी आदत जो तू कहता है यार ये मैं ना चाहता हूँ कि मेरी आदत खत्म हो जाए भाई, जो तू पसंद नहीं करता, शायद कोई भी पसंद नहीं करता, एक ऐसी आदत? मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं। अच्छा, सुबह यार, लेकिन मैचेस में तो आ रहा है सुबह वाले मैचेस में। बस मैचेस ही ना, और भी तो चीजें हैं जो उसके लिए नहीं आता। ऑफ द फील्ड विद फैमिली भी है। हाँ, ये बात राहुल है तो ऑफ द फील्ड विद फैमिली भी है, वो फैमिली भी है। एक ऐसा फेमस डायलॉग जो कि तेरे लाइफ के, मतलब ये बोल सकता है कि ना दिस डायलॉग ये तेरी लाइफ समराइज कर देता है, दिस मतलब ये तेरी लाइफ है इस डायलॉग, या कोई मूवी? ये तो सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा। कोई भी एक होगा ना यार, ये दिस इज यार, मतलब ऋषि ये मैं हूँ, ये डायलॉग है ना, ये मेरे पे सूट करता है। या फिर कोई एक ऐसा कैरेक्टर मूवी में, या हाँ ये बंदा ना मैं बिल्कुल इसकी तरह हूँ यार, मैं ये मेरे ऊपर बनी पिक्चर। संजू मैं नशा करता हूँ। मैं कहीं नशा करता हुआ दिखता हूँ। संजू कैसे? नहीं, बस ऐसे मूवी है। कभी धोनी। अच्छा धोनी, ओके क्रिकेट के ऊपर भी है। अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। द अनटोल्ड स्टोरी नहीं, टोल्ड या स्टोरी। अनटोल्ड में हाँ जी, so that's all in the first round, and let's take a quick break and we'll be back after this break for the second round. Hello everyone, this is Prabhat from Hunters Family. I hope everybody is safe and healthy. Today I'm going to talk about one of the most integral part of this family. He is known for his one-liner. He is one of the best off-spinner we have. He's a true match winner. He is very popular amongst all of us. I wish him a best of luck for his interview. And also I want Rahul to hit sixes in each and every delivery he throws during the interview. All the best, Rishi, for this interview. Thank you so much. Stay tuned. हेलो एवरीवन, मैं अंकित प्रताप सिंह
और मैं ऋषि भैया के लिए बस यही कहना चाहूँगा, वो एक टीम मैन है। उनसे चाहे बैटिंग करवा लो, बॉलिंग करवा लो, चाहे फील्डिंग करवा लो, हर चीज़ में अपना 100% देते हैं और टीम को रेगुलर इंटरवल्स में विकेट्स भी देके देते हैं। इन्हें बस अपनी थोड़े फिटनेस पे जो काम करने की ज़रूरत है, बाकी तो सब एक नंबर है। थैंक यू। Hi everyone, this is Harshit from Hunters Cricket Gurgaon, and this video is for our special guest Rishi Balla, one of the best, entertaining, funny person in the team. We play together for Hunters Black and we enjoy together. We have a very good memories all together, and I support him as a big brother, and I wish him like he can achieve each and everything in his career. Hello everyone, I hope all are doing well. Today we're going to talk about one guy whom I can describe as heart on two legs. He's very bubbly around the field. He goes to you, talk to you, keeps you motivated. He's none other than Rishi Balla. My fond memory about Rishi is like I can remember an incident where I can tell that he has very big heart when he comes to ball. His figures like 70 something wickets in 74 matches. Let's tell you the story. And the incident I was talking about was like he got the ball, the first 2 or 3 balls went for boundaries, but he kept on giving the loop and eventually get the player out in the long on boundary. So he's someone who backs himself. I think the older he gets, he's like a wine. Probably all spinners are like wine. So the older they get, the more experience they get, and more wickets they take. So I hope Rishi does the same, and I wish Rishi all the best for future. Keep doing good work with it. Bye. So here we come for our second round, which is reverse swing. तो ऋषि, एज यू नो, रिवर्स स्विंग जो होता है, जो हमारा राउंड होता है, सबसे फेवरेट है। इस पे ना रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है हमको, कि इसमें बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस होते हैं और इसमें जो बातें होती हैं वो बहुत शानदार होती हैं। तो तैयार है? ऑल सेट? रेडी। ओके, सिंपल चीजें पूछेंगे, सिंपल। यार ऑब्वियसली यू आर फॉलोइंग अस फ्रॉम डे 1, सारे एपिसोड फॉलो कर रहे हैं। अभी ऑफ लेट नाइट मतलब लास्ट एपिसोड में बात हुई थी कि विच टीम इज बेटर, हंटर्स ब्लैक और हंटर येलो। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, कि कौन सी टीम बेटर है, हंटर्स ब्लैक और हंटर येलो? येलो कौन सी टीम है? वो अंकित वाली, अंकित प्रताप वाली? हाँ, वो अंकित प्रताप वाली टीम। अंकित प्रताप वाली टीम? अरे वो टीम थोड़ी है वो। उनको एक मेरा मैसेज है कि अच्छा? आप सब अपनी जर्सीज का ना चेंज करवाओ, मनु सर इनकी जर्सीज चेंज करवाओ, सबके पीछे अंकित लिखवा दो। अच्छा, हंटर्स येलो का नाम चेंज कर देनी है ये? इज दैट व्हाट यू आर रिकमेंडिंग? सारे प्लेयर्स की जर्सी भी चेंज करके सबके पीछे अंकित लिखवा दो, सेम नंबर सेम अंकित। क्यों ऐसा क्यों यार? मतलब दे लव अंकित सो मच, और मतलब क्या है ये, अंकित के लिए प्यार है उनका, या फिर अंकित से शुरू होती है अंकित पे खत्म हो जाती है? बस वही कहानी उनकी वहीं तक है। अच्छा, तो अंकित को अगर इनकी टीम से निकाल दें, हाँ, सो डू यू थिंक मतलब तो वो हंटर्स ब्लू की तरह बन जाएगी, जो अभी पूरी है ही नहीं। आप अपना इक्का हटा के तो देखो, हमारे पास तो सारे बादशाह हैं। कभी टेबल पे आके तो देखो। So you are saying कि मतलब उनकी टीम 1 से लेके 11 तक, मतलब कोई भी तो होगा यार, सेकंड पे कोई तो होगा। 1 से लेके 10 तक सारे अंकित। तो 11वां तो अंकित है ही। तो उनके टॉप 5 बैट्समैन अगर बताने हो हंटर्स येलो के, हाँ, तो कौन कौन होंगे? ओपनिंग पे आप अंकित को भेज दो, और थर्ड डाउन फोर्थ डाउन आप अंकित को भेज दो। सिक्स डाउन पे अंकित संभाल लेगा, 8 से 9 में पे अंकित संभाल लेगा, और टेल एंडर तो अंकित है ही, क्योंकि वो बॉलर भी है, तो 11वें नंबर पे आके वो जिता सकता है। यार दैट्स अ सीरियस एलिगेशन ऑन हंटर्स येलो, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू कमेंट ऑन दैट, कि मतलब अंकित के बिना आप, आई थिंक अंकित अगर आपकी टीम में नहीं होगा तो यू गाइस कांट इमेजिन योर टीम विदाउट अंकित, और शायद सेल्फ इंपोज बैन कर लेंगे अपने ऊपर
कि यार अंकित नहीं है तो हम बैन लगा रहे थे, हम खेल ही नहीं रहे, क्रिकेट ही नहीं खेल रहे। हाँ ओके अच्छा यार एक बारी हाँ इन्होंने एक और चीज बोली थी कि ना फिटनेस के ऊपर बात हुई थी, एंड आई रिमेम्बर कि ये बोला गया था कि हंटर्स येलो ज्यादा फिट है हंटर्स ब्लैक के कंपैरिजन में। तो डू यू थिंक ऐसा कुछ है, या फिर हंटर्स ब्लैक में कोई एक ऐसा प्लेयर कि वो पूरी टीम हंटर्स येलो को चैलेंज कर सकता है और हंटर्स येलो मिलके उसको नहीं संभाल सकती? हमारा धर्म अकेला कर सकता है। धर्म आप पूरी येलो टीम को एक तरफ खड़ा करो, हम एक धर्म को खड़ा करेंगे। धर्म भंगड़े पे जितने स्क्वाट्स मारेगा पूरी टीम अकेले मिलके लगा दे, अकेले मारेगा धर्म जितने स्क्वाट्स भंगड़े पे, पूरी टीम इतनी मिलके लगा सकती। That I completely agree यार, उस बंदे की एनर्जी इज नेक्स्ट लेवल। मैंने उस बंदे को थकते हुए नहीं देखा। नहीं, और वो अगर भंगड़ा कर रहा है वो उसकी वो मैराथन है उसकी, वो खत्म लग ही नहीं सकता, वो खत्म करके रुकेगा, वो नहीं रुकेगा। सो हंटर्स येलो चैलेंज फॉर यू गाइस, तुम लोग हंटर्स ब्लैक के हमारे धर्म को हरा सकते हो भंगड़ा में या नहीं? कमेंट, और उसके बाद हम करेंगे ये चैलेंज, हम करेंगे ऋषि। We'll see that. हाँ, ये फिटनेस है, भंगड़ा इज फिटनेस। तो यार कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, यार ये बात हुई थी व्हिच टीम इज बेटर, तो किस टीम ने ज्यादा ट्रॉफीज वगैरह जीती हैं या फिर ज्यादा मैचेस जैसे ऐसा कुछ है हमारे पास? कि हाँ पूरा डाटा है, मनु सबसे लो, ब्लैक का डाटा चेक करवा। तो हंटर्स येलो ने कोई चैंपियनशिप जीती भी है? क्योंकि दे वर क्लेमिंग कि दे आर द बेस्ट। उन्होंने एक विनिंग ट्रॉफी जीती है, उसमें भी 4-5 ब्लैक के प्लेयर खेले थे और अंकित खेला था उनकी साइड। मुझे लगा इतना अंकित हो रहा है कि उन्होंने एक ही ट्रॉफी जीती है, दैट इज अंकित, और अंकित को ट्रॉफी की तरह ही ट्रीट करते हैं। हाँ वो क्योंकि हर कोई बंदा क्लेम कर रहा होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। वो बस वो कहते हैं टेढ़ा है, सीधा है, पर मेरा है। टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे है। आप उनसे किसी और की भी डील कर लो, प्रभात सर से, अंकित को नहीं छोड़ेंगे, बाकी से किसी को भी दे सकते हैं। ध्यान रखो तुम येलो वालों। एक एडवाइस हंटर्स येलो के लिए, हंटर्स येलो के लिए थोड़ा यार बाकी सबके लिए चांस दो, और प्लेयर्स ही मतलब मोटिवेट होके खेले, थोड़ा ब्लैक से इंस्पिरेशन लो कि हम कैसे एक होके खेलते हैं। हाँ, मतलब एक टीम नजर आती है हंटर्स ब्लैक की ना, इंडिविजुअल्स पे डिपेंड नहीं करती है। चार हमारे पास ऑलमोस्ट सारे मैच विनर्स हैं, सारे मैच विनर्स हैं, हम अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर टूर्नामेंट के हम अपने फाइनल्स में होते हैं। जीत नहीं रहे क्योंकि हाँ उसमें ये येलो आ जाती है ना बीच में, हमें भी खिलाओ तो हम फाइनल हार जाते हैं। स्ट्रिक्टली नो। राइट। अब हमारी टीम और स्ट्रांग हो जाएगी, हमारे पास राहुल भी तो वापस आएगा। वो तो है राहुल शादी के लिए गया था, आया नहीं वापस। थोड़ा नहीं, अब मैं वापस आऊंगा यार। मैं शादी करके आया यार, उसके बाद तो कोरोना ने ऐसी तैसी कर दिया, कुछ बिल्कुल सब कुछ बैन हो गया, लॉकडाउन हो गया। एक बार ही खुलेगा अच्छे से। हैदर ने एक चीज क्लेम की थी, ये बोला था कि ऋषि भल्ला जो है ना वो घर में चूहा है और बाहर शेर है। अच्छा, कमेंट करना है इस चीज पे? हाँ। अरे नहीं यार, मैं हर जगह शेर हूँ। ये देख मेरे घर पे भी मेरा शेर टंगा हुआ पीछे। नहीं, हैदर के लिए कुछ एडवाइस या कुछ बोलना है हैदर को? हैदर के लिए यार, हैदर नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, वो मतलब उसके हाथ छोटे छोटे हैं। ऐसे मुट्ठी में मुझे क्या पता क्या है घर में, क्या क्या रखा हुआ है। तो भैया हैदर जाने, जब तक पहनना है तब तक ठीक है, जब उसका कुछ और मूड है तो वो जाने। लेकिन हैदर से है, हैदर खत्म होगा हमारा तो हैदर और मेरी डील है, अच्छा सा गाना लिखेगा तो हम उसको अच्छा मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। एग्जैक्टली। हाँ, तो हमारा थोड़ा डील है, तो उसको मैं थोड़ा कुछ और ऐसे एडवाइस वगैरह देके भी नहीं, गाने गंदा लिख दे मेरे लिए भाई, अच्छा लिख, तो बहुत बढ़िया बनता है। अच्छा लिख अच्छा यार। ऋषि एक बात बता यार, अगर तेरे पास एक सिचुएशन हो, या फिर मैं एक सिचुएशन देखूं, कोई ऐसा बैट्समैन है हंटर्स में जिससे तुझे लगता है उसको 6 की 6 बॉलों पे अपने ओवर में अलग अलग तरीके से आउट कर सकता है? अच्छा हाँ है ऐसा कौन? मुकेश मरीमुट्ठू। मुकेश? मेरे को लग रहा था, क्योंकि मुकेश ने ये क्लेम किया था कि अगर एक ओवर में 24 रन चाहिए होंगे ना तो वो मार देगा अगर ऋषि भल्ला बॉलिंग कर रहा है। तो क्लेम ही तो किया है। Now you are saying कि भाई तो आए नहीं 6 बॉलों में 6 तरीके से आउट कर सकता है, 6 की 6 बॉलों पे उसे।
चलो मुकेश भैया आपके लिए मुकेश, हाँ इट्स अ मुकेश, चैलेंज भाई। हाँ ग्राउंड आपका, विकेट का टाइप आपका, कौन सी साइड से खेलोगे आपका, कितने बजे अच्छा। खेलोगे आपका, Very हम आ nice. जाएंगे और 6 बॉल पे 6 बार आपका आउट भी करेंगे। ओ तेरी यार, ये तो चैलेंज हो गया बहुत बड़े वाला गाइस। 6 पे 6 बोल्ड ही करके छोड़ो आपका। ओ तेरी। करोगे क्या करोगे? भाई साहब बिग क्लेम्स गाइस, बिग क्लेम्स। मुकेश ने एक तो बहुत बड़ा क्लेम कर दिया था। नाउ दिस इज द रिबटल। ऋषि, मुकेश अब तेरा रिस्पांस सही है मुझे अभी इस पे, और उसके बाद में टीम चैट ग्रुप में भी देखते क्या बोलता है। पहले डिस्क्लेमर लगा देना। हमारे शो से पहले डिस्क्लेमर आना चाहिए। अच्छा भाई एक बात बता, अंकित देशवाल ने बोला था कि उसने मतलब फिटनेस को लेकर काफी बातें, उसने और चीजों को लेकर भी काफी बातें करी थी। उसने बोला था कि सबसे अनफिट प्लेयर जो है ना वो ऋषि बल्ला है। और भी बोले थे वैसे, ऐसे मत सिर्फ मेरा नाम लिया। मतलब नंबर 1 पे ऋषि बल्ला था। नहीं, वो टारगेट था हंटर्स ब्लैक पे। वो प्रॉपर टारगेट था कि हंटर्स ब्लैक पे टारगेट करना है, क्योंकि वो होता है ना जो भी बेस्ट होता है अपनी फील्ड में उस पे टारगेट किया जाता है। हाँ ये बात कोई भी अच्छा है। काम फिर कर रहा है तो उसको वो होता है ना, फेमस होना है तो टॉप प्लेयर्स या फिर टॉप वो अच्छा। जैसे उनको टारगेट करो तो अल्टीमेटली पब्लिसिटी मिल जाती है। तो इट वाज अ पब्लिसिटी स्टंट। नहीं, अनिल देशवाल वो 2 बोतलों पे पुशअप मार रहा है। हाँ। उसे पता है हम नहीं कर सकते हैं, तो वो फिट हो गया, हम तो अनफिट ही हो गए ना। तो हमारी गेम में आओ ना, कभी लूडो में या कभी चेस में या तुझे फिटनेस सिखाएंगे। बस उसी में ही आ गया। अंकित के बारे में एक और चीज मैंने देखी है या फिर मतलब सुनी भी है कि अंकित ना भूल जाता है। लास्ट टाइम जैसे वो ये भूल गया था कि वो हंटर्स रेड से खेलता है, ही थॉट वो हंटर्स येलो को से खेलता है, और शायद इसीलिए वो ना हंटर्स येलो को डिफेंड करे जा रहा था, और वो हर चीज हंटर रेड हंटर ब्लैक के अगेंस्ट बोल रहा था, इवन हंटर ब्लू के अगेंस्ट बोल रहा था। तो शायद वो भूल जाता है। वो गजनी उसका नाम है। गजनी तो है ही वो। बाकी अर्पित हमारे साथ खेलता, उसका कैच तो उसने थोड़ी सी बचा ले। तो वो बस वो अर्पित का नाम नहीं ले पाया, क्योंकि अर्पित में फिर उनकी दोनों की पिल्लो फाइट हो जाती बेचारों की। ओह माय गॉड, जय वीरों की लड़ाई होती है। राइट राइट राइट। ब्रो एक बात बता कि अच्छा चल, एक और ये बात हुई थी कि यार अंकित भूल जाता है, तो तेरे को कुछ ऐसा याद है कि अंकित देशवाल कभी मतलब ग्राउंड पे आया हो बैटिंग करने और भूल गया गार्ड, मतलब ही इज अ राइट हैंड बैट्समैन, और उसने लेफ्ट हैंड वाला गार्ड ले लिया, लेफ्टी वाला गार्ड ले लिया, कभी ऐसा हुआ? हाँ, 2 बॉल खेलने के बाद हेलमेट मंगाया उसने, पहनना भूल गया। हाँ ये तो 2 बॉल नहीं, 2 ओवर खेलने के बाद मंगाया भाई, उसने लास्ट टाइम बताया था कि 2 ओवर खेले था उसके बाद उसे याद आया था। हमारे सामने 2 बॉलों के बाद भूल गया, स्ट्राइक लेना भूल गया, रन भागना भूल गया शॉट मार के। ये हुआ उसके साथ। हाँ उसको भाई वो फिटनेस फ्रीक है। वो फिटनेस फ्रीक है यार, वो तो मैंने देखा, उसके वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ आजकल। वो भाई सीरियस कॉम्प्लेक्स देता है सबको, मतलब बियर की बोतल पे खड़े होकर कौन पुशअप मारता है पता नहीं अब क्या। 2 बोतलों पे पहले तो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉटल्स कहाँ से ला रहा है। बाकी उसको नीड है ना इस चीजों की, उसको राइट स्वाइप जो करने हैं। राइट स्वाइप के लिए तो चाहिए ना हमें, राइट स्वाइप के हमारा कौन सा राइट स्वाइप, हमारा कौन सा राइट स्वाइप। राइट तुम्हारा 6 पैक, हमारा फैमिली पैक। अब तुम्हारा हमारा तो नहीं ना राइट स्वाइप। मुझे एक चीज बता, चल मैंने एक ना चीज बनाई है। हाँ, हमारे कुछ प्लेयर्स के नाम लूंगा, तो बताइए कि ना अगर ये विलन होते, सुपर विलन होते, अच्छा तो कौन से विलन तेरे को लगता है कि ये हमारा जो प्लेयर है वो इस विलन की याद दिलाता है? ठीक है, मनु शर्मा पहले बात तो विलन शाकल जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी हेयर स्टाइल की वजह से। नहीं, वो गुस्सा भी ऐसे करते हैं ना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम बैटिंग कैसे नहीं कर रहे हो, तुमने रन क्यों नहीं बनाए। प्रेशर में रहते हैं ना वो थोड़ा सा। बाकी ये तो एनहांस हो गया ना उनका, ये तो बाकी एनहांस हो गया उनसे। प्रभात मिश्रा वो प्रभात मिश्रा वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं था, वो फैजल वाला। फैजल, हाँ भाई वो कहीं अंकित का येलो का अंकित अच्छा सिर्फ अंकित का लेगा रे तेरा मिश्रा। अच्छा सिर्फ अंकित। अच्छा उनके दिमाग में यही है। और कौन प्लेयर उनकी टीम में है कोई?
मेरे को लगता है कई बार ना, मेरे को लगता है प्रभात मिश्रा की करते भी होंगे। मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें एक बंदा क्या करता है, शाहरुख खान था शायद, वो फ्लावर लेता है और वो पेटल उठाता है, उसका तोड़ता है एक पत्ती और ये बोलता है अंकित मेरा है, अंकित मेरा नहीं है, अंकित मेरा है, अंकित मेरा नहीं है। तो लगता है प्रभात ऐसे करते होंगे। ये किया उन्होंने। ये किया होगा, पक्का किया होगा। यार ये मतलब रिस्पेक्ट जो करता है उस बंदे को, उसको मेरे ख्याल से बहुत पसंद ही करता है, ही एडमायर्स हिम अ लॉट, या फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत आए अंकित से। ये तो है। हमारा कप्तान कहता है 6 पे 70, उनका कप्तान उसको कहता है जो तेरा मन करे भाई। जैसा तेरे को ठीक लगे, जैसा मतलब तुझे लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, तू तेरे पे। मैंने सुना कि यार ऐसा भी कुछ हुआ था कि मतलब इंस्टेड ऑफ आस्किंग अंपायर, उनको ये हुआ था कि यार अंपायर भी अंकित को ही बना देते हैं, मतलब बैटिंग करवा लेते हैं, बॉलिंग करवा नहीं, लेते हैं। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। इतना ज्यादा ऐसे हो गया कि ये बॉलिंग कर रहे, एलबीडब्ल्यू हुआ तो वहां पे थर्ड अंपायर ले सकते थे। तो अंकित पॉइंट पे खड़ा हुआ, उससे पूछने चले गए ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यार कीपर से पूछो, बॉलर से पूछो, लेग अंपायर से डिस्कस कर लेते जाके। बाहर मन्नू सर बैठे हैं, उनसे कर लेते डिस्कस कि सर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यार पॉइंट वाला कैसे बताएगा एलबीडब्ल्यू का? इसे बोलते हैं ट्रस्ट। हाँ, और वो अंकित ये भी नहीं कह रहा कि मुझे नहीं पता, कह रहा हाँ सर ले लो मुझे लगा। और वो भी है ना कि इतनी उम्मीद के साथ आए हैं, ना कर दूंगा तो बुरा मान जाएंगे। प्रॉब्ली ऐसा होता होगा। वो नहीं, उसने कहा चलो ठीक है, चल रहा है। जब तो वो सवाल था नहीं, जब तक बल्ला चल रहा है, जब तक ठाट है। राइट। मुकेश देसवाल, इसका तो चलता भी रहेगा। मुकेश देसवाल कौन सा विलन, मतलब अंकित देसवाल, अंकित 2 प्लेयर्स मैंने वो मगअप कर दिए, मुकेश और शादी करा दी उनकी, क्या हो गया? यार लास्ट टाइम एक्चुअली इन्होंने क्वेश्चन पूछा भी था अंकित से, लेकिन अभी अर्पित बुरा मान जाएगा। ये तो यार मुकेश की उससे हो गई है। मुकेश के बारे में बता, मुकेश मारीमुथु का नाम सुनते हैं तेरे दिमाग में कौन सा विलन या कौन सा सुपर हीरो आता है? सुपर विलन ही रजनीकांत। हाँ वही है वो, उसका गेम चेंजर भी है ना वो कुछ। हाँ वो तो है यार, गेम चेंजर है ना, मतलब अगर उनको खत्म गेम को भी, मतलब वो यहाँ तो वहीं हार जाएंगे, यहाँ वो जिता देंगे। राइट। और धर्म तो मतलब पंजाबी सुपरस्टार है वो तो। पर धर्म लगता है, हाँ धर्म जैजी भी। और देखो उसका हेयर स्टाइल, उसका बिल्कुल यार शूट करता है, जैसी भी है वो। रॉकस्टार है भी, वो टीम का रॉकस्टार है ना। अगर कोई बंदा है जो बंदा रॉकस्टार है, वो धर्म है भाई। धर्म है, मतलब वही अकेला है, मतलब बैड बॉय, बात नहीं माननी कोई। अगर बन्नू सर ने इतना कहा यार घर रुको, कहीं नहीं जाना, बंदा घूम ही जा रहा है। कोई लॉकडाउन नहीं उसके लिए, पूल पार्टियां कर रहा है। मतलब इतने नंगे लोंडे तुम कहां से इकट्ठे करके ले आए लॉकडाउन? अंकित देसवाल, अच्छा मुकेश की वाइफ, ओ हस्बैंड। ऐसे ना पहली बार ही राहुल पकड़ा गया है। अंकित देसवाल, अरे वो लोग गजनी है, मतलब फिटनेस ये और भुलक्कड़, और भूल जाता है। यार मुझे लगता है ना, पता है ये भूल जाता है कि इसे बेड पे सोना है, तो ये बॉटल्स पे सो जाता है। ये ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, ये शायद भूलने की वजह से ये टिप्स मार रहा है। मेरे को उससे पहले पूछना है, इतनी तू फिटनेस फ्रीक है, ये बॉटल्स इकट्ठी कहां से कर रहा है? कौन, मतलब कौन खाली करके दे रहा है तेरे को? ये खाली कौन कर रहा है भाई? ये या तो तू खुद खाली करता, तेरे को चढ़ जाती है, तू नशे में कर जाता है। तुझे खुद नहीं पता मैं ये क्या कर रहा हूँ। तुझे वो अर्पित अगले दिन वीडियो दिखाता, तू कहता अरे ये मैंने क्या किया। अच्छा ये मैंने नहीं किया होगा। इन हंटर्स सबको नीचा दिखाता हूँ अभी इसी वक्त, देखो गाइस, चैलेंज फॉर यू। हाँ मतलब ये कहता है कि ग्रुप में सबको नीचा तो दिखाऊं थोड़ा सा। यार ये कॉम्प्लेक्स देता है यार, सीरियस कॉम्प्लेक्स देता है। उसका हमारा होता ही नहीं कि हम इससे बात कर ले फिटनेस के बारे में। यार वो कौन कर सकता है? भाई 2 बोतलों पे कौन पुशअप करेगा? सही है। गुलाम बता लास्ट। गुलाम तो अमरीश पुरी है। कौन सा वाला? कोई सा भी, कोई भी, मतलब वो हर मूड में अमरीश पुरी है। वो कौन सी पिक्चर थी वो लंदन में होता है जो बिटिया, जिसमें बोलता है बिटिया जा सिमरन जा, बिटिया निकल आई थी वहां पे। तो ये वो बिटिया वाला अमरीश पुरी है वो। चलो यार, इससे याद आया,
एक हाँ। ना बहुत फेमस हमारा ट्रिप था मेरे ख्याल से, कसौली वाला, राइट? कसौली वाला मेरे हाँ। को ज्यादा ही पता है। तो हाँ, पता है, और मेरे को ना क्लैरिफिकेशन चाहिए एक्चुअली। तो हाँ। प्रभात मिश्रा के साथ एक एपिसोड हुआ था, उसमें प्रभात ने बोला था कि यार आई वॉज वेरी टायर्ड। मेरे को जो सुनने में आया था कि पूरे ट्रिप पे जाते वक्त जर्नी पे प्रभात सोते हुए गए थे। तो और जब मैंने प्रभात से पूछा तो उन्होंने बोला था हाँ कि मैं यार बहुत थका हुआ था, मैं पूरे ऑफिस में मतलब 25-30 घंटे काम करके आया था, तो आई वाज सो टायर्ड, आते ही मैं सो गया था। तब मुझे जानना है कि इस बात का सच क्या है। ये बंदा टेम्पो ट्रैवलर शुरू होने के 5 घंटे बाद थका होगा। अच्छा, ये मतलब सब हमें नहीं पता था कि ये मैं सोचा ये सर रहे हैं सीरियस रहने वाले ये है ना, ये टेम्पो ट्रैवलर में चढ़े हैं तो ये इनका रूप ही अलग है भाई। सबसे पहले क्या होता, नोटोरियस बच्चे आते हैं इनका, मैं लास्ट सीट पे मैं बैठूंगा, लास्ट सीट पे कब्जा करके बोतल अच्छा। खोल के जो इन्होंने बैक वेंचर, उसके बाद जो बोतलें खाली करी हैं, बोतलें पानी की बोतल, आई थिंक प्यासे हुए काफी। नहीं 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 नहीं, सुनहरा पानी। अच्छा अच्छा, जो इन्होंने सुनहरा पानी, हाँ, अमेरिकन सोमरस जेडी, वो जो खाली करी है पीछे बैठ के, किसी को नहीं पीने दी। उसके बाद जो उन्होंने ध्यान बांटा पीछे बैठ के 5-6, मतलब जब तक सुबह नहीं हो गई, इन्होंने इनके 2 ही काम थे, पियो निकालो, पियो बस रोको निकालो। उसके बाद ये तब थके हैं जब इनको पता चल गया कि भाई दारू हो गई खत्म, अच्छा। पीने को मैं बचा नहीं है, सुसु में 2 बारी हो आया हूँ, अब अंदर से निकलने को भी पानी नहीं है, पीने के लिए बूंद नहीं, निकालने के लिए बूंद नहीं। तो ये बंदे ने कहा कि भैया अब आंख बंद करता हूँ और सपने में पीता हूँ। अब सपने में पीता हूँ। हाँ, तो ये लास्ट सीट पे जिसपे 4 बंदे बैठे हैं उस पे लेट के सो गए। और इनको हटाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। हमारा हर्षित जमीन पर लेट के हाँ, अच्छा वो इस वजह से। हाँ। ओके, इन्होंने मुझे बोला था कि नहीं वो तो साथ में बैठा हुआ था, साथ में नहीं बैठा था, वो आया, उसे पता चल गया कि भाई ये हिलने वाला नहीं है, और इतना अच्छा कोई है नहीं, कोई इतनी लंबी जर्नी पे मेरे को एडजस्ट कर लेगा। यार वो भी हमारे अनफिट ग्रुप का मेंबर है, तो वो भी नहीं रहता कहीं पे। तो भैया वो बंदा कदमों पे सोया, लोगों कदमों में। और रवि का क्या हुआ था यार? रवि का भी मैंने सुना था। रवि कौशिक इतना शरीफ है कि वो बंदे ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, वो बंदा जागता हुआ गया, खड़ा होके गया टेम्पो ट्रैवलर में। यार सर आ नहीं रहा, टेढ़ा करके सर ऐसे अपना खड़ा रहा, किसी को कोई बोल नहीं, देख सब रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा। और मनु सर वहाँ पे क्या कर रहे थे? मतलब मनु सर तो मतलब काफी इंसाफ की तराजू है। इंसाफ का तराजू ऐसे वक्त में नहीं होता ना जहाँ खुद की सीट छोड़नी पड़ जाए। अच्छा, तो उस टाइम पे वो अंधा कानून बन जाते हैं। अंधा कानून, टोपी नीचे करके और सबको चांद दिखा के कि भैया चांद निकला है, सो जाओ, रात है ये, है ना, चाहे बाहर सूरज है, लेकिन अपना चांद दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर वो खड़ा हुआ है, देख लो, खड़ा हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो कहते हैं कि भाई तुझे दिख रहा तो तू देख ले। मैंने कहा अरे वाह सर वाह। मैंने कहा सर मुझे भी नहीं दिख रहा, मुझे चांद नजर आया, मैं सो रहा हूँ। अच्छा, मनु सर से एक्सपेक्टेड ही था भाई, वो तो मतलब कम से क्रॉस ऐसे कि बहुत ही जेन्युइन, एकदम से साधु टाइप इंसान। हाँ, ग्राउंड पे तो रवि शास्त्री भी अच्छा ही खेलता था। बाहर बैठा है तो उसके क्या मीम्स बन रहे हैं। राइट। अच्छा, ये मनु सर के बारे में कुछ सीक्रेट रिवील कर यार, क्योंकि सबको लगता है कि मतलब वो गाय हैं, वो बिल्कुल गाय हैं, ऐसा मतलब सच है ये? गाय नहीं, बैल है, बच के रहो। बैल गाय नहीं है। अच्छा, उन्होंने सीन शेव कर रही है अपने अभी। उनको तुमने अनफिट में डाल दिया बंदे का। हाँ यार, एक्चुअली मैं हैरान था इस बात को लेके कि मनु शर्मा को भी मतलब ये बोलते हैं कि वो भी अनफिट है, ऋषि है, मनु है, गुलाम, मतलब सारे बेसिकली हंटर्स ब्लैक वाले को अनफिट बोलते हैं। बट हमारा जवाब धर्म है। हम धर्म दे रहे हैं, तुम धर्म को हराओ, हम हार मान, सब ने तुम धर्म को हराओ, हम हार मान लेंगे। मेरा वचन है आप अगर तुम धर्म को हरा दोगे, यानी धर्म की हार हुई, अधर्म की जीत हुई, तुम जीत गए, जाओ। तुम जीत गए, अधर्म जीत गया, अधर्म जीत गया। ओके, दैट्स ऑल भाई, दैट्स ऑल। इस राउंड में यही सब था। बहुत मजा आया यार ये सारी बातें डिस्कस करके। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। ओके। Hello to everyone, this is Sameer. This is special message for Rishi Bhaiya.
so called ऋषि भल्ला in this hunters group. बस मैं इनके बारे में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छे और खुश मिजाज इंसान हैं। मुझे एक किस्सा बहुत अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे थे का तो ये मीडियम पे सर हुआ करते थे, तो आर के सर, राजकुमार सर हमारे हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, देखो देखो इधर आओ, इस लड़के का रनअप इतना ज़्यादा तेज़ है ना कि ये बॉल डालते के साथ ही सीधा अपने घर निकलता है। बस यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही सपोर्टिव भैया हैं। बाकी मैचेस खेलेंगे जब मिलेंगे और बातें और इनके बारे में जब बताएंगे। थैंक यू टू ऑल, लव यू ऋषि भैया। हेलो ऋषि पाजी, हंटर्स फैमिली के बेस्ट बॉलर के साथ साथ आप हंटर्स फैमिली के एंटरटेनर, एक फनी मोमेंट एंटरटेनर भी हैं। जब भी टीम में एक नर्वस मोमेंट में होती है, कोई ऐसा पॉइंट आप रख देते हैं कि पूरे टीम में खुशी की लहर आ जाती है और वो फनी मोमेंट टीम का उस मैच का एक मेमोरेबल मोमेंट बन जाता है। थैंक यू सो मच कि मैं हंटर्स से जुड़ा। थैंक यू सो मच हंटर्स कि हंटर्स ने मुझे अपनी टीम फैमिली का मेंबर समझा। और थैंक यू सो मच ऋषि पाजी कि मुझे आप जैसा एक सीनियर प्लेयर मिला। थैंक यू सो मच। This is Pranav this side, and I think it's Rishi Balla's turn. I've known him bachpan se, and he's been a fantastic player of cricket. He has all the energy to put in every ball. He used to be a fast bowler, but uski shaadi ho gayi. He caught up with age, but his love for cricket never died, so he became an off spinner. And I've never seen his ball turning on the track, but he still believes that he can turn the ball. So I support him. And he's been a great character, and he's one of the funniest characters to be included in the team. So I wish him all the best for this session. Hi, this is Ghulam Askari from Hunters Cricket Club. Today I love to talk about my vice captain, Mr. Rishi Bhalla. He's an excellent guy, phenomenal human being. He has excellent sense of humor, great poetic expression, great comic timing, on field, off field. I really love you, Rishi. All the best for your career. Thank you. Okay, that was quite a surprise. Let's quickly move ahead to our last section, which is dugout. तो डगआउट में यार क्या होता है, डगआउट में हम लोग अपनी ना फेवरेट, जो कोई भी एक फेवरेट मेमोरी होती है हंटर से रिलेटेड, और हंटर से रिलेटेड ना भी हो बट क्रिकेट से रिलेटेड हो, प्रेफर्ड होता है कि हंटर से रिलेटेड हो। तो एंड सिंस यू बीन सच अ टेन्योर्ड पार्टनर, तो तेरी तो कोई ना कोई होगी, 2 साल हो गए हैं। बहुत सारी है, एक बताता हूँ बहुत बढ़िया बता। हाँ, जो मतलब मेरे को हर टाइम मतलब उसको तो वो नहीं भूल सकता। पीसीएल हमने स्टार्ट किया तो उसका एक मैच हो गया, सेकंड मैच था, तो जैसे हमारा रिपोर्टिंग था 2:30, तो वो दोपहर को मैच होते थे, तो मैं 2:40 पे पहुंचा। मैच शुरू हुआ 4 बजे, मैच 4 बजे शुरू हुआ, लेकिन मैं कितना लेट था, 10 मिनट। यार वो इजी है, 10 मिनट में क्या होता है। तो 4 बजे मुझे पता चला, 4 बजे मुझे पता चला मैं तो बाहर बैठा, क्योंकि मैं अच्छा ऐसा नहीं कि टीम में मतलब हुआ, क्योंकि मैं लेट आया हूँ 10 मिनट। 4 बजे के मैच में 2:40 पे मैं लेट आया हूँ। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, टीम है, मैं लेट आऊँ, अब से नहीं आऊँगा, मैं जल्दी आऊँगा। अब फिर 2:30 का रिपोर्टिंग है, मैं 2:15 पे आया हूँ, मैं खेल रहा हूँ। अब मैं खेल रहा हूँ तो हमारी बैटिंग चल रही है, 9:30 ओवर हो गए हैं। 10 ओवर के बाद एडी आता है, किट लेके ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहा है कि वो लेट हो गया। और इंसाफ का तराजू मन्नू सर की आवाज आती है, एडी पैड कर, तुझे नेक्स्ट जाना है। मैंने कहा सर कहाँ गया वो इंसाफ आपका, कहाँ गया वो तराजू, 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, ये 10 ओवर लेट है वो तेरी। हाँ यार, हाँ तो वो मेरे को उस दिन पता चला एडी हंटर्स का दम है। अच्छा ये स्टोरी थी, ये मैंने काफी सुना था भाई कि एक मैच में मतलब ऋषि को ड्रॉप कर दिया जस्ट बिकॉज़ वो थोड़ा सा लेट था, और एडी को 10 मिनट, हाँ, और एडी को मतलब 10 ओवर के बाद खिलाया। यार ये क्या बात है ऋषि, इसी बात पे एक बात बताया, तुझे क्या लगता है कि मनु सर मतलब इज द फ्लैग बेयरर ऑफ नेपोटिज्म? नेपोटिज्म नहीं कर होता है, ऐसा है कुछ, क्योंकि अपने फेवरेट प्लेयर्स को मतलब
ये सारे प्लेयर्स जयपुर के जो फेवरेट होते हैं वही राजस्थान रॉयल्स के फेवरेट वाले प्लेयर क्यों आते हैं हंटर? अब ये पता नहीं, अब वो ढूंढते वहाँ पे हैं, हम जाने रहे यहाँ, तो फिर घर हमको भेजो पंजाब ढूंढ के लेके यार। अब एक बंदा मेहनत कर रहा है, उस पर थोड़ी कर लेंगे, तुम मेहनत क्यों कर रहे हो? नहीं वो अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं। बट फिर एडी को खिलाना मुझे मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि तो एडी वो हंटर्स अंकित की टीम है ना, जो वो उसमें है ना। अच्छा, नेपोटिज्म उसमें है, हंटर्स अंकित। अच्छा वाह वो तेरी, ओह माय गॉड। जैसे हमने बोला कि ओवर एंड देने, तो चलता है उनका वो। हम तो अगर हम किसी को मतलब वो करते ना कि नहीं दूसरी टीम से हमें कुछ सपोर्ट लेना पड़ रहा है, तो हम देखते हैं कि नहीं यार हमने सपोर्ट के लिए किया कि वी शुड टेक चांस, है ना। तो वो कहते हैं उनकी उधर चले जा, अरे लगेगा मौका तो खेलेगा, ठीक है। मुझे क्या लगता है भाई, बात बता, कभी ऐसा हुआ कि रीशफल हुआ, हंटर ब्लैक येलो ये और एक टीम बनी, और ऐसा कुछ हुआ कि ना सब कुछ ऐसा हो गया, हंटर येलो में से सिर्फ अंकित निकल गया, तो मतलब तुझे क्या लगता है चूड़ियां वूड़ियां तोड़ देंगे ये लोग, क्या मतलब क्या धरने पे बैठ जाएंगे, जंतर मंतर पे कुछ होगा ऐसा? नहीं, फिर बाकी टीम को ब्लू से मर्ज कर दो। बन गई टीम पूरी, धरने पे क्यों बैठना, हो गया ठीक है, खत्म करो। बट फिर वो उसके अगेंस्ट खेल भी नहीं सकते ना, अंकित के अगेंस्ट ना खेलते, नहीं खेलेंगे, बैठ जाएंगे बाहर, वॉक ओवर दे देंगे हमें उनके साथ मैच में। ये बात है। फेवरेट मेमोरी बता, फेवरेट मेमोरी जहाँ पे तुझे लगा कि यार ये जो ना मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, मजा आ गया इस मैच में, ऐसा कुछ? सारे मैचों में कि यार मैच निकालना तो फिर फेवरेट हो ही जाती है। हाँ। फिर भी कोई एक परफॉर्मेंस जो कि हमेशा याद रहेगी कि हाँ ये परफॉर्मेंस टिल डेट माय बेस्ट परफॉर्मेंस? मेरे को सारी अपनी परफॉर्मेंस मतलब ऐसा लगता है कि मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है, कोई किसी में वो ऐसा नहीं है, तो वो ऐसे ही करूंगा दूसरी परफॉर्मेंस बुरा मान जाएगी। नहीं फिर भी एक ऐसे नहीं बुरा नहीं मनवाना, हाँ सिर्फ एक अगर पिक कर रही हो कि हाँ यार ये थी जिसमें ना मुझे अभी तक याद रहती है कि हाँ यार ये। अरे मैंने 4 विकेट ले ली थी, मेरी 5th विकेट थी, 2 बॉलें बची थी, लॉन्ग ऑन पे कैच की, क्या ड्रॉप कर दी, ये चाहते ही नहीं मेरा 5 विकेट हॉल हो। ओह माय गॉड, अरे वो फील्डर कौन था? वो फील्डर कौन था? छोड़ो फील्डर क्या नहीं फिर मनु सर तो नहीं थे? हाँ, मन्नू सर लॉन्ग ऑन पे कहाँ चले गए, मन्नू सर कवर ववर पे रहते हैं कि मतलब पीछे बॉल निकले तो एक काटने के लिए पीछे फील्डर होना चाहिए ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए मेरे को। ये गुलाम सर ना, ये मेरे को पता है ना इनका, ये ऐसे फील्डर पीछे अपने पीछे फील्डर ले लेंगे बाउंड्री पे, खुद सर्कल में रहेंगे, मतलब एक कट गई तो पीछे काटने के लिए होना चाहिए, छोड़ी तो फिर तूने क्यों नहीं पकड़ी। राइट। अच्छा यार वेरी नाइस यार, T20 में 4 विकेट लेना इज अ बिग अचीवमेंट ब्रो। अरे एक और चीज, एक बहुत अच्छी चीज है मनु सर की, उन्होंने एक इतना अच्छी मतलब टेक्निक निकाली हुई है कि ग्राउंड पे वो जाते हैं, उनका एक चीज वो बताते हैं, मतलब अगर उन्होंने टोपी निकाल के ऐसे किया तो भाई आपको सिंगल देना पड़ेगा, सिंगल, ये उनका सिग्नल है। अच्छा हाँ, तो टोपी निकाल के घुमाएंगे और ऐसे ऐसे आपकी आंखों में शाइन भी पड़ेगी थोड़ी सी, मिरर सा निकल के आता है, तो ऐसे लगता है हाँ सर दूंगा सर, सिंगल दूंगा। अच्छा तो कई बार ऐसा हुआ है सर, वो कई बॉलर्स को चौके छक्के पड़ गए सिंगल देने के चक्कर में, क्योंकि उनके माइंड सेट होता है कि यार अब मेरे को सिंगल देना है, मैं कहाँ डालूं, चौका छक्का पड़ जाता है। यार मनु शर्मा, मतलब मनुष उनके यार उनको हमेशा ये बोला था कि ही इज द बाइंडिंग फैक्टर, वो एक ऐसा बंदा है जो ना सबसे कनेक्टेड है। हाँ, बंदा सर, प्रभात सर, इनके बिना इमेजिन नहीं हो सकती हंटर्स को आप नहीं सोच। प्रभात सर ने भी बहुत मेहनत की है, मतलब ठीक है मेरी जितनी तो नहीं की, लेकिन ठीक है की है। उन्होंने इतनी मेहनत करी है, अंकित अपनी टीम में दिया है, बहुत मेहनत की। कुछ भी हो जाए इसे नहीं जाने देंगे, इसको नहीं जाने, बहुत बजाई है लो तुमने। मेरे ख्याल से ये हो भी सकता है क्वाइट पॉसिबल कि शायद ना अंकित के लिए हंटर्स येलो वाले करवा चौथ का व्रत भी रखते हैं। वो बहुत कुछ, वो नवरात्रों का भी रखते हैं, वो एकादशी का भी रखते हैं, वो मतलब वो पूर्णिमा पे चांद की पूजा भी करते हैं, वो सारे पीपल के पेड़ पे दिया जलाने जाते हैं रोज। अच्छा, लंबी उम्र के लिए। और लंबी उम्र का मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, बस ये होगा कि जब तक रहे हंटर्स येलो का रहे।
सब रोज एक राउंड जरूर मारते हैं, जैसे 1 किलोमीटर का जॉगिंग करते हैं कि अंकित तू फिट रहे। यार ये कैसे हो सकता है? कहते होगा, अब तुम्हें क्या मतलब है? ये कोई मतलब तुम मेरे लिए भी जॉगिंग कर लो फिर। मैं भी यार, अंकित तू मेरे लिए भी पुशअप मारा कर, ताकि अंकित देशवाल तू मेरे लिए भी पुशअप मारा कर, ताकि मैं भी थोड़ा फिट गया तुझे मैं भी फिट। अच्छा एक बात बता अंकित देशवाल, पहले तूने ये पूरन सर को कौन सी मैराथन भागते हुए देख लिया जो वो अनफिट जोन में नहीं है? हैं यार, पूरन सर का नाम नहीं है, ये क्या बात यार? वो एक्चुअली टारगेट, मैं बता रहा हूँ, टारगेट ही एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि हंटर्स ब्लैक वगैरह। अच्छा, अपने तुम्हारा चौकत बड़ा फिट है ना? अपने कप्तान का तो नाम नहीं लिया गया, बट उसने ये बोल दिया कि मेरा कप्तान इज लाइक धृतराष्ट्र। तो उसने ऐसी चीज बोल दी, उसको शॉपर को पता ही नहीं चला होगा ये क्या चीज है। वो वहाँ गूगल कर रहा है बैठ के, वो वहाँ कश्मीर में गूगल कर रहा है बैठ के, धृतराष्ट्र कौन है भाई। 4 बुक खरीद के लेके आ गया, वो ढूंढ रहा है अभी भी। यार धृतराष्ट्र बोला, मैं पढ़ लूंगा, क्या करना, मैं कहा है क्या चीज। So that's all Rishi, that's all in this round as well. और बिफोर वी कंक्लूड दिस एपिसोड, जिनको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पहले मेरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि चलती रहे यार, कॉन्वर्सेशन चलती रहे, इतना मजा आ रहा है, इम्प्रॉम्प्टू ही चल रहा था, बट टाइम कंस्ट्रेंट भी है, सो लेट्स कंक्लूड इट हियर। और वही एक जो हमने रिचुअल रखा हुआ है कि भाई बिफोर वी एंड द शो हम गेस्ट को बोलते हैं कि यार आप कुछ चंद शब्द बोलें, क्योंकि ये सीजन का लास्ट एपिसोड भी है, ठीक है। और मेरे ख्याल से जहां से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, एक माइंड में थॉट आया था कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ बोल कि हाँ यार कैसा लग रहा था, कोई ये हम मतलब सक्सेसफुल हुआ हमारा फर्स्ट सीजन, ये कैसा लगा? इसकी सक्सेस इसी से पता चलती है कि एक राहुल फैन क्लब बन चुका है। तो इससे मतलब अब मुझे लग रहा है कि यार आपके पास कहीं और बुकिंग के ऑर्डर आने लग जाए कि हमें भी स्टार्ट करना है ऐसा, कि हमारा प्रोग्राम भी होस्ट करो। तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो सबके इंटरव्यू बहुत अच्छे हुए हैं। तो ऑनेस्ट फीडबैक बता कैसा लगा? मतलब नहीं, बहुत मजा आया, बहुत मजा। मतलब मैं क्या, सभी करते होंगे, हम वेट करते होंगे संडे आए और मतलब हम अपना एक एपिसोड देखें, और नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो अभी जो टाइम मतलब उनको इस टाइम पे हम जैसे अपने घर पे हैं, लॉकडाउन है, तो हम अपने नए प्लेयर्स को हम जान रहे हैं, कौन कैसा है, कहाँ है, क्या किसका क्या बैकग्राउंड है। तो इससे पता चलता है हमारा, देखो प्लेयर कहाँ से हैं, कोई अरुणाचल प्रदेश खेल के आया है, कोई राजस्थान का है, कोई आगरा का है, अरुणाचल प्रदेश खेल के आया है, कोई साउथ से है, कश्मीर से है, पंजाब से है। तो मतलब एक छोटी मोटी नेशनल टीम तो हमने बना रखी है। हमारे पास NRIs भी हैं, धर्मबाजी हमारे NRI भी हैं, धर्मबाजी हैं हमारे इंटरनेशनल यूके मुंडे से रिटर्न है वो, ऐसे तो नहीं है। तो मतलब एक हमारा बॉन्ड और अच्छा स्ट्रांग हुआ है इसमें। बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो गया यार। इवन ना उन प्लेयर्स के बारे में जानने को मिला जो शायद ज्यादा बात नहीं करते, इनके बारे में ज्यादा कोई जानता नहीं था, तो वो बहुत अच्छा लगा कि वो लोग सारे आए और अपने बारे में उन सब ने एंजॉय भी किया, और काफी कॉन्फिडेंटली उन लोगों ने बात किया अपने बारे में कि ये है वो है, तो वो बहुत अच्छा वो भी किया। और बाकियों ने भी, जो जिनका भी मतलब अभी 7 एपिसोड्स जो हैं, तो हमारा सीजन 2 सीजन 3 जो आएंगे, सबका इंटरव्यू होगा। तो जिसका नहीं हुआ उसने एज अ वीडियो मैसेज बना के अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो कहीं ना कहीं सब इन्वॉल्व हुए, सब कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छा इन्वॉल्व हुआ, इन्वॉल्वमेंट अच्छी हुई। और सिर्फ हंटर ही नहीं है हमारा, अगर आप वो वैसे देखो एनालिसिस की, हमारी व्यूअरशिप कितनी वो चल रही है, काफी हाई है क्रिकेट सर्कल में। हाँ, मैंने सुना काफी दिल्ली एनसीआर में काफी लोग हमारे व्यूज कितने अच्छे चल रहे हैं। सब कंबाइन करें अगर हम, तो हमारे बाहर से कितने लोग देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, वो तभी देख रहे हैं। वो भी देख रहे हैं भाई हंटर्स क्या है। इससे हमारे को और कितनी वो मिल रही है कि हमें ज्वाइन करना है हंटर्स। लेकिन अब सब ये ठीक हो, कोरोना खत्म हो, तो हम उसमें वर्कआउट करें आगे। तो इससे जल्दी से खत्म हो ये पेंडेमिक यार, और जल्दी से रियल बिजनेस जो हमारा क्रिकेट है उस पे आए। खेले बस थोड़ी धर्मबाजी ग्राउंड पे जा रहे हैं, बस बिना मास्क पहने हम भी होके जाएं, हम भी जाएं खेलने। एग्जैक्टली। चल ऋषि, अब जल्दी से यार एक शानदार सा गाना सुना दे भाई। गाना तो गाना है ये पूरे हंटर्स के लिए।
पूरे हंटर्स हैं तुम यार, फैमिली हो एक मेरी, तो तुम सब यारों के लिए, ठीक है। पंजाबी गाना है तो ये लेते हैं थोड़ा सा। ओ दिल शीशे जहे साफ ने, पावे शक्ला दे पक्कियां, सातों शुरू होने वाजियां, असी हुक्म दे अक्के हां, ओ सानू होना नहीं जानी बलिए, थुक के जो लेंदे चटनी, ओ जिंदाबाद रहन दिलो यारिया, जिदा करके जे आंदा जटनी, ओ जिंदाबाद रहन दिलो यारिया, जिदा करके जे आंदा जटनी। हमें अपना बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग करते हैं, और स्ट्रॉन्ग करते हैं, और अच्छा करते हैं, और फैमिली हमारी बढ़ रही है अब, तो ये ऐसे ही मतलब बढ़ती रहे, सबका प्यार रहे आपस में, और देखो मतलब अच्छा लगता है ये पार्ट ऑफ दिस हंटर्स ना। अब कुछ भी और छूट सकता, हंटर्स नहीं छूट सकता। इमोशनल हो रहा है ऋषि है। अरे इमोशनल हो रहा है। और देखो मैं टेल एंडर हूँ, इसलिए मेरा लास्ट एपिसोड था। संभालनी थी ना मेरे को, इसलिए टेल एंडर को लास्ट ही मिलती है। देखिए पता क्या था, ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल, so that's the reason we are ending the show with you. अरे ये तो कैसा लगा आपको, मैं आपके शो में आया? बहुत अच्छा लगा। मैं बोलता रहा हूँ कि मेरा मन ही नहीं कर रहा कि इसे एंड करें, और शायद लगता है कंटिन्यू करते रहें, लॉट मोर की हम बात करें और बहुत सारी चीजें बात करें, और प्रॉब्ली मेरे को लग रहा है कि लोग भी यही चाह रहे होंगे, वो भी इतना एंजॉय कर रहे होंगे इस समय कि हाँ यार ये चल रहा है, येलो वालों को छोड़ के आई एम श्योर। नहीं अरे येलो वाले यार देखो, ये तुमने दिल पे नहीं लेना। हाँ दिल पे नहीं लेना है, देखो तुम यार जानो मेरी, देखो तुमने हमारी इतनी बजाई है, मेरा इतना सा तो बनता है। अगर यार तुम्हारी देखो हंटर्स अंकित, अगर मैंने तुम्हारा इतना भी नहीं किया ना, हंटर्स अंकित ठीक है ना, इतना मेरा बनता है, इतना मेरा बनता है, इतना बनता है। हमारे बेचारे शरीफ से प्लेयर आए, मुकुल हैदर बेचारों को तुमने, और तुम्हारे आके मतलब हमारे सीधा ही मतलब। कोई नहीं, करारा जवाब मिल गया मेरे ख्याल से, और ये मजेदार था। इट वाज मतलब फ्रेंडली बैंटर जिसे बोलते हैं ना, वो था। और ऑफ द फील्ड हम जो मर्जी करें, बट ऑन द फील्ड वी आर वन टीम, दैट इज हंटर। एंड ऑन दैट नोट, ऑफ द फील्ड विद राहुल। So that's all guys, that's all I have in this season 1, and we are ending the season 1 right now with this episode, and very soon we'll start shooting for our second season as well. And meanwhile, stay safe, stay at home, keep liking and subscribing our channel, and that's all for tonight. Take care, bye bye, फिर मिलेंगे, bye bye. Think of health. Think of us. Think of weight management. Think of us. Think of lifestyle modification. Think of us. We are Anchal's Nutri Treasure. We have a history of changing life to healthy life over the period of 2 years now. Healthy life with healthy diet is the name of the game we all are in for. If yes, we are the one, Anchal's Nutri Treasure. Personalized services from qualified dietitian Anchal Garg Sharma around metabolic disorders like diabetes mellitus, cholesterol, hypertension, thyroid, and PCOS management, etc. Interested healthy life, healthy diet believers can reach us at our Facebook and Insta pages at anchal.nutritreasure, email anchal.nutritreasure@gmail.com, contact number 886-042-8386.